Good morning everyone. Today we are going to start grouping of cells. In this topic we will study about series combination, parallel combination and mixed grouping. So first one is cells in series. Number of cells arranged in series. See, a single cell provides a feeble current. In order to get a higher current in a circuit, we often use a combination of cells, two or more cells. A combination of cells is called a battery. So in this we are going to study first how do we arrange cells in series. So see, when the negative, this one is negative, a smaller one, and this one is positive. When the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on, then these combinations are said to be series combination or connected in series. So for the equivalent, here two cells are taken, first one having a EMF E1, second one having EMF E2. Here internal resistance of cell is R1, here internal resistance of cell is R2. So the combination of this can be written as the equivalent one cell having EMF. Here the current I have taken is I. So consider I current is flowing here also, but here it is, this cell is actually the combination of these two cells, and we can say this have equivalent EMF EEQ and equivalent internal resistance of these two series arrangement REQ. These are 2 point, actually में A और C यहाँ और यहाँ भी है. So E equivalent and R equivalent is actually the equivalent of these two. Equivalent of E1 and E2 is E equivalent. Equivalent of R1 and R2 is R equivalent. All right. So the series combination in previous classes, like series combination of resistances, we usually consider the current. Here the current I is flowing to cell 1 and cell 2 both. So current is same. We have to consider the potential differences between A, B and C. So for this, here we can write, let VA, VB and VC be the potentials at A, B and C respectively. All right. So this we can write VAB as the potential difference between A and B as VA minus VB, VA minus VB. Similarly, I am leaving this. Here I am writing VBC. It is actually VB minus VC. Now, see in the circuit, A और B के बीच का potential, when current I is passing through from B to A, current I is passing through from B to A, here current is passing through this cell. So this cell has internal resistance R1. So current will drop about this or across this R1. How much voltage drop? I into R1. तो E1 में से कितना कम हो जाएगा? I into R1 कम हो जाएगा और बचा वाला इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं VA माइनस VB सर्किट के अकॉर्डिंग, VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं E1 VA माइनस VB के बीच में पोटेंशियल EMF है और उसमें से कितना ड्रॉप हो गया? I R1. इसी तरह यहाँ पे दूसरे वाले के लिए E2 I R2. तो these are two potential differences. Now we have to calculate the potential difference between A and C directly. Between A and C, the equivalent potential difference. So this will be VAC. So VAC is equals to VA minus VC, or we can say VA. यहाँ पे हमने क्या किया? VB को घटाया और VB को जोड़ दिया for our expression. So we can write VA minus VB plus VB minus VC. Here these two are
we have already deduced, so we can write E1 minus IR1 plus E2 minus IR2. So this will be E1 plus E2 minus I common R1 plus R2. Here you can place this in separate brackets. This is our VAC or the potential difference between these two points. अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच का क्या कहलाता है, ई इक्विवेलेंट, है ना. ये ईएमएफ है और ये आर इक्विवेलेंट क्या है, ये रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो असल में फ्रॉम इक्विवेलेंट अरेंजमेंट VAC क्या होना चाहिए था, E इक्विवेलेंट होना चाहिए था माइनस आई आर इक्विवेलेंट होना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे अब सामने दिख रहा है हमको ये E इक्विवेलेंट, इसका जो सीरीज़ का होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2. दीज आर दी EMF और द सम ऑफ EMFs ऑफ टू सेपरेट cells, and R equivalent will be equals to R1 plus R2. See, here we have got two expressions for series combination for two cells only, but we easily extend this study for any number of cells. So for n number of cells, for n cells connected in series, E equivalent will be equals to E1 plus E2 plus E3 and so on and so forth till En, and R equivalent equals to R1 plus R2 and so on and so forth till Rn. So this is the expression for series combination. Now next is parallel combination. Here one such arrangement is shown. Two cells having potentials EMF E1 and E2 and internal resistances R1 and R2 are connected in parallel. Here जैसा कि आपने रेजिस्टेंस में देखा है, current passing through this here at point B2, here point B2 is this, point B1 is this. ठीक है, at point B2 current is distributed, I1 करंट इधर गई, I2 इधर, यानी I ही किस पार्ट में गई, I1 और I2 में. I1 करंट E1 से पास हुई, यानी I1 करंट वोल्टेज ड्रॉप किसके थ्रू देगी, R1 के थ्रू. I2 करंट E2 से पास हुई तो वोल्टेज ड्रॉप किसके थ्रू देगी, R2 के थ्रू. यहाँ R1 R2 क्या है, स्मॉल वाले, ये इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ सेल्स हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोबारा से I1 करंट I2 करंट आगे बढ़ेगी और I बना लेगी. अगर हम इसका इक्विवेलेंट एक शिमेटिक बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इसका अपना रेजिस्टेंस. तो क्या कुछ खास अंतर आएगा, ये ऐसा लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट हो गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट है. ठीक है, इसमें से कितनी करंट बह रही है, आई करंट बह रही है. ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट बन सकता है. नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. हियर current I is flowing and distributed to I1 and I2. So we can say this. Now as potential, very important thing, B1 और B2 के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, दो कांस्टेंट पॉइंट्स हैं. तो इस सेल के लिए भी पोटेंशियल जो होगा वो B1 B2 के पोटेंशियल के बीच के वाला पोटेंशियल होगा और इस सेल के लिए भी वही सेम पोटेंशियल रहेगा. सो इफ VB1 and VB2 are potentials at B1 and B2, all right, and potential difference across terminals of first cell. देखिए फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेल के लिए मैं लिख रहा हूं. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल में I1 करंट जाएगी, I1 करंट इस R1 जो ये हमारा R1 आया, R1
इसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई इंटू आर वन, आई1 इंटू आर वन। ये किस में से होगा? ईएमएफ में से होगा, यानी ईएमएफ में से आई1 आर1 घटा देंगे तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ये कह दिया वी। वी क्यों? क्योंकि जितना ऊपर वी रहेगा उतना नीचे वाले के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, सेम पॉइंट के बीच में जुड़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इजीली हो रहा है वी बी वन माइनस वी बी टू, लेकिन यहाँ इस वी बी वन माइनस वी बी टू में क्या कर रहे हैं? ई वन माइनस आई वन आर वन। तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन, इसको छोड़ देना, हमको तो एक्चुअली में आई वन आई टू के फॉर्म में चाहिए, तो आई वन आई टू चाहिए, तो यहाँ से आई वन निकालिए। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया? ई वन माइनस आई वन आर वन। तो यहाँ से आई वन इक्वल्स टू कितना हो गया? इसको इधर ले जाओ, v इधर ले आओ, तो ई वन माइनस वी अपॉन में आर वन, इसको लिख लो इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल, पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स फॉर सेकेंड सेल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस terminals of second cell, V is equals to again the same potential difference, VB1 minus VB2, but here the cell is E2 and the potential drop is through I2 and this across R2, so I2 R2, so this will be I2 is equals to E2 minus V by R2, equation 2. So this is two currents. Now as I equals to I1 plus I2, so E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2, we can easily write it. Now solve it. We have to calculate in the form of, अगर आपने पीछे वाला एक्सप्रेशन देखा v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर के फॉर्म में आया था, वो इसी फॉर्म में हमें इसको बनाना है। अब आप कैसे भी करिए इसको इस फॉर्म में बनाइए। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा v वाले टर्म एक साइड, i वाला जो टर्म हो जाए वो एक साइड। देखो इसको करने के लिए क्या करें, E1 बाई R1 कर लें प्लस E2 बाई R2 कर लें। देखिए E1 बाई R1 E2 बाई R2 अलग कर लिया, और माइनस में ये वाला देखिए अलग कर रहे हैं, माइनस v बाई R1 ये पहले वाले टर्म से आया है, माइनस v बाई R2 ये दूसरे वाले टर्म से आया है। ठीक है, अब देखिए इसको e वाले को एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2, ये हो जाएगा E1 ये कुछ एक्सप्रेशन v के फॉर्म में अलग आ रहा है ना, v को अलग चाहिए हमको, यहाँ पे ये i रहने दें। ठीक है, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, E1 बाई R1 E2 बाई R2 v बाई R1 v बाई R2। I is equals to E1 बाई R1 E2 बाई R2 माइनस v कॉमन ले लें, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहाँ से ये अब देखिए एक्सप्रेशन हो जाएगा E, ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे हमें I के साथ मल्टीप्लिकेशन रखना है, V को अलग रखना है, यानी V को इधर ले लें, I को इधर ले लें, तो हो जाएगा V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I। अब देखिए अब ये बनने लग गया, एलसीएम ले लो R1 R2, ये बनेगा E1 R2, ये बनेगा E2 R1 और ये बनेगा माइनस R1 R2। कुछ गड़बड़ है क्या? माइनस R1 R2 ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये वाला अलग सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा R1 R1 प्लस R2, इधर वाला सॉल्व हो गया। अब यहाँ केवल v छोड़िए, बाकी सारे टर्म को इधर ले लीजिए, तो ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1
मैं इस R1 R2 को डिवाइड कर दे रहा हूँ, R1 R2 अलग माइनस आई, जब ये करेंगे तो ये वाला R1 R2 और आई R1 R2 ये अलग हो जाएगा, ये दोनों तो खैर अलग हट गया। ये वाला जो टर्म है ये पूरा देखिए, यहाँ पे इस पूरे टर्म को हम अलग रख लेते हैं, ये ऐसा ही है, मल्टीप्लाइड बाई इसको इधर ले जाएंगे तो ये होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला इधर। अब देखिए ईजिली v इज इक्वल्स टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 ये अलग कट जाएगा, ये R1 प्लस R2 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I होगा, ये होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप इसको कोई और मेथड ईजिली देख पा रहे हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स कुछ पता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने ये एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर फॉर्म का दिख रहा है ये। सो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, इसको इक्वेशन 3 कह लीजिए। इक्विवेलेंट सर्किट जो अभी हमने पीछे बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, v इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट हो सकता है। कौन सा सर्किट, ये जो हमने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक अलग इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन जब बन जाएगा तो अब यहाँ आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारी 4 हो गई, कंपेयरिंग 3 and 4, ठीक है। 3 4 को कंपेयर करिए तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 एंड एक ये एक्सप्रेशन बना, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, सीधे कंपेयर कर लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो थोड़ा एक इसको जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने के लिए मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। देखिए कौन सा टर्म कट जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट गया R1 R2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को दोनों में बांट दीजिए इक्वल इक्वल, तो हो जाएगा E1 बाई R2 तो कट जाएगा, R1 बचेगा प्लस E2 बाई R2। देखिए ये अगर कितनी भी सेल हों, E3 बाई R3 E4 बाई R4 ऐसे हो सकता है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन बना E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ से दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखो ये वही है 1 बाई, नहीं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस तरह के कितने भी एक्सप्रेशन हों, कितने भी अलग अलग सेल्स लगे हों, उसके लिए ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो ये दो एक्सप्रेशंस जो हमारे हो गए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गए, इसको ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है कि हमें सर्किट में ज़रूरत होती है मैक्सिमम करंट की, ठीक है ना, कभी कभी मैक्सिमम करंट की ही ज़रूरत है। तो अगर हम किसी सर्किट से, खूब सारी सेल्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स आपको दे दी गई है, 5-6 सेल दे दी गई हैं, आपसे कहा गया कि इसको ऐसे अरेंज करिए कि मैक्सिमम करंट इससे आप विड्रॉ कर पाएँ सर्किट से। तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि सेल को किस तरह अरेंज करें कि ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ करे, ठीक है ना। उसके लिए अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर a series combination of cells। केवल इसमें आपको समझना है, कुछ भी बहुत टफ एक्सप्रेशन नहीं है। मान लीजिए n नंबर ऑफ सेल्स, खूब सारे सेल्स लगे हुए हैं जिनकी संख्या n है।
n सेल्स, सभी सिमिलर आइडेंटिकल सेल हैं, मतलब सभी का कह लीजिए कि इक्विवेलेंट ईएमएफ सबका सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये बाहर एक अलग से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। आई इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रही है इसमें सर्किट में, ठीक है। तो अब देखिए इससे मैक्सिमम करंट किस अरेंजमेंट, कैसे अरेंजमेंट करें कि विड्रॉ हो, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल ईएमएफ देखिए कितना होगा। टोटल ईएमएफ यहाँ लिख लीजिए पहले, हियर सेल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्लियर हो गया। टोटल ईएमएफ क्या है, एन सेल्स का क्या होता है, सीरीज में समेशन हो जाता है, सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, तो इट इज इक्वल्स टू एन इंटू ई हो जाएगा। मान लीजिए अगर ई एक का है तो इस तरह के एन ई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 इसको लिख सकते हैं आप। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस भी तो सीरीज में जुड़ता था ना R1 प्लस R2 से, तो कितना हो जाएगा R प्लस R, तो कितना हो जाएगा n टाइम्स है तो NR, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ पता चल गया, तो टोटल करंट, करंट विल बी हाउ मच, I is equals to total EMF upon total resistance. But how much total resistance is? सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है। देखिए सेल का तो NR हो गया, N इंटू स्मॉल r, लेकिन बाहर भी तो एक लगा है ना, तो ये रेजिस्टेंस, और EMF टोटल कितना है NE। सो दिस इज अवर करंट, ऑलराइट। सो ये हमारी करंट है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। मान लीजिए बाहर वाला केस फर्स्ट, ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ये मान लीजिए ये सारे सेल्स के, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल्स हैं इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके सम से भी बहुत ज़्यादा बड़ा। देन I इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो NR बहुत छोटा हो गया, R बहुत बड़ा, तो NR को नेग्लिजिबली स्मॉल है तो छोड़ सकते हैं। सो वी कैन राइट NE बाई कैपिटल R। सो इट इज़ एक्चुअली द n टाइम्स ऑफ E बाई R। E बाई R क्या है, n टाइम्स ऑफ करंट that can be drawn from one cell। एक सेल में जितनी करंट आती है उसका n गुना ये करंट आती है अगर R बहुत बड़ा हो, यानी बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो। तो केस 2, मान लीजिए बहुत छोटा है R, ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू एन ई हो जाएगी, और R को इस बार छोड़ना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में R को छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एन आर। सो इट इज़ वेरी स्मॉल, तो एन आर ये E बाई आर बन गया। सो इट इज़ करंट बाई अ सिंगल सेल ओनली, इतना सिंगल सेल से करंट आएगी। तो अब ये बताइए करंट किस में ज़्यादा मिल रही है, ऊपर वाले में। इसका मतलब जब R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सेल्स के सम से, यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, द सेल्स कैसे जोड़नी चाहिए, शुड बी, कैसे जोड़ा, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट, यानी जब कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो सीरीज में जोड़ना चाहिए करंट को।
मैक्सिमम करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो इसमें हमने क्या देखा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो उसमें सभी, और ये आइडेंटिकल सेल्स का केस है, अलग अलग सेल्स भी हो सकती हैं, तब भी आप ऐसे ही जोड़ेंगे इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जो जब भी हमको जोड़ना होगा ऐसे केस में तो क्या करना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, सभी के इंटरनल रेजिस्टेंसेस को जोड़ दिया, सभी के पोटेंशियल को जोड़ दिया। उसके बाद हमने जब टोटल करंट निकाली तो यहाँ पे चेक किया कि R बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर R बहुत बड़ा हो तो ऐसे केस में हमेशा सीरीज़ रेजिस्टेंस में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेल्स को जोड़ना चाहिए। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो क्या होता है और एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं और किस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए। थैंक यू।